الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو ہے، مسلمان کے مطابق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے؟ جانور کا قتل کرتے ہیں، کتنا غلط کام ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کو گوشت کھانے کی اجازت کیوں ہے؟ میں جواب دینے کے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاری ہونے کے باوجود۔ اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے، وہ 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاری ہونے کے بعد بھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیتے ہیں قرآن مجید میں تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے انسانوں کو 4 پائی کے جانور بنائے ہیں تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ صرف وہ جانور نہ کھائیے جن کی ممانعت ہے، جو پروہیبٹڈ ہے، جو حرام ہے۔ لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے کیٹل بھیڑ بکریاں بنائی ہیں تاکہ آپ ان سے گرمی حاصل کر سکو اور ان کا گوشت کھائے اور ان کا گوشت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ ہم نے بھیڑ بکریوں میں ایک مثال پیدا کی ہے، آپ ان کے جسم سے دودھ پیتے جو آپ کے لیے اچھا ہے اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے تو مسلمان کیوں نہ کھائے؟ ہم اس پہ تحقیق کریں گے ریزن، لاجک اور سائنس کے ذریعے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جتنے جانور جو شاکاہاری ہے، بھیڑ، بکری، گائے، جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، ان کے دانت چپٹے دانت ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہربیورس اینیمل۔ وہ جانور جو ماساہاری ہے، جو کارنیورس ہے، جو صرف گوشت کھاتے ہیں، گھاس پھوس نہیں کھاتے، مثال کے طور پہ شیر ببر، ٹائیگر، چیتا، ان کے دانت نوکیلی دانت ہوتے ہیں، وہ صرف گوشت کھاتے ہیں۔ جب ہم آئینے میں جا کے دیکھیں گے، ہم انسان آئینے میں دیکھیں گے تو خدا نے، ایشور نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چپٹے دانت بھی دیے ہیں اور نوکیلی دانت بھی دیے ہیں، ہربیورس اینڈ کارنیورس۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایشور بھگوان چاہتا تھا کہ ہم صرف گھاس یا بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے۔ سائنس، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شاکاہاری جانور ہے ان کی اتڑیاں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ صرف وہ گھاس پھوس بھاجی پالا کھا سکتے، گوشت ہضم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ڈائجسٹو سسٹم اتڑیاں بنائے ہیں اللہ نے، خدا نے ماساہاری جانور کے، ٹائیگر، لیپر، شیر ببر، ایسے کہ صرف وہ فلیش، صرف گوشت کو ہضم کر سکتے، بھاجی پالا نہیں ہضم کر سکتے۔ انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اتڑیاں، اسمال انٹسٹائن اینڈ لانگ انٹسٹائن، چھوٹا انٹسٹائن، لمبا انٹسٹائن، ایشور نے، بھگوان نے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم بھاجی پالا بھی ہضم کر سکے اور گوشت بھی ہضم کر سکے۔ خدا نے ہمیں ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا؟ تاکہ ہم بھاجی بھی ہضم کر سکے اور گوشت بھی۔ اگر خدا چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا جسے ہم گوشت بھی ہضم کر سکے؟ اسی لیے سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان بھاجی پالا بھی کھا سکتا ہے، گوشت بھی کھا سکتا ہے، دونوں کھانا چاہیے۔ اور گوشت میں پروٹینز ہے، اٹس اے فل کمپلیٹ ڈائٹ۔ 8 امینو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے وہ خوراک میں لینا چاہیے، کھانے میں لینا چاہیے۔ کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں، کوئی بھی بھاجی پالا میں سارے 8 امینو ایسڈ نہیں ہیں، لیکن فلیش میں، گوشت میں ہیں۔ اور لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے۔ ہم جب ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، منوسمرتی میں لکھا ہے
अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर कोई इंसान खाने वाले जानवर खाता है तो गुनाह नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए और कुछ को खा जाने के लिए। कुछ जानवर को आप खा सकते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवर को खाना चाहिए। दो किस्म के जानवर बनाए। अगर आप ऐसे जानवर को खाते हैं जो खा जाने के लिए बनाए हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप गोश्त खाते हैं कुर्बानी में तो आप सही करते हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कत्ल करना कुर्बानी में इसकी इजाजत है, क्योंकि ये ईश्वर, भगवान, खुदा का रूल है। जब हम वेद का मुताला करते हैं, हिंदू मजहबी किताबा का मुताला करते हैं, कई जगह लिखा है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की इजाजत है, गाय भी खाने की इजाजत है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 इसमें युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, वो पूछते भीष्म से कि हम यज्ञ में, हम पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा जो मर गए वो संतुष्ट हो, उन लोगों को खुशी होंगी। तो भीष्म कहते हैं अगर आप चावल, बार्ली, राइस, भाजी पाला देंगे तो हमारे पुरखों को 1 महीने के लिए संतुष्ट वो रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, खंजीर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, और बड़ा मेन्यू है, फरिश्त है। अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे पुरखे, हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। और अगर आप राइनोसरस देंगे, गेंडा या रेड मीट ऑफ गोट, तो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। कौन कह रहा है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत में अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88। मैं जब भी हवाला देता हूं, मैं जब भी जिक्र करता हूं कोई दीगर मज़ाहिब का, हमेशा हवाला देता हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि जाकिर कुछ भी फेंक रहा है। मैं मेरे दिमाग से कह रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, माशाल्लाह कई लोग नोट कर रहे। नोट करो, जाके चेक करो, इसलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। आपको पूरा हक है मेरे से सहमत नहीं होने के लिए। सवाल जवाब में जो पूछना है पूछ सकते। अगर मैं गलती किया तो माफी मांगूंगा, नहीं तो जवाब दूंगा क्यों मैंने कहा। तो हिंदू मजहब में गोश्त खाने की इजाजत है, लेकिन हिंदू मजहब में कई हिंदू क्यों गोश्त खाना छोड़ दिए? क्योंकि बाकी मजाहिब से, क्या अहिंसा की फिलॉसफी से मुतासिर होके, और इन दिगर मजाहिब में यह सोच है, इन लोग कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवरों में जान है, तो जान लेना हराम है, इसलिए गोश्त खाना हराम है। ये सैकड़ों साल पहले शायद अगर कोई कहता है तो शायद लोग मान लेते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हम जानते हैं कि जानवर के अलावा इवन पेड़ पौधों में जान है। तो हम जब कहते हैं भाई जानवर के अलावा पेड़ पौधों में भी जान है, तो अब क्यों पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनका भी फलसफा बदल गया। ठीक है, हम मानते हैं कि पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधों को दर्द का एहसास नहीं होता है, जानवर को दर्द का एहसास होता है। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हमें पता लगता है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन दर्द का इजहार हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी है 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इसके नीचे, इसके ऊपर हमें सुनाई नहीं देता है। तो जब पेड़ पौधे दर्द के एहसास से चिल्लाते हैं, हमें आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उनको भी दर्द होता है। तो एक शख्स जो गैर मुस्लिम था, काफी बहस कर रहा था, वो मुझे कहने लगा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं
पेड़ पौधों में जान है, मैं मानता हूं उन्हें दर्द का एहसास होता है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि जानवरों में 5 सेंसेस है, पेड़ पौधों में सिर्फ 3 है। इसीलिए जानवरों को खाना, कत्ल करना बड़ा गुनाह है बनिस्बत पेड़ पौधों के। मैंने कहा कि खाली बहस के तौर पे मैं आपकी बात को मानता हूं कि जानवरों में 5 सेंसेस है, पेड़ पौधों में 3 है। अगर ये सही है तो मैं सवाल उससे पूछा कि अगर आपका एक भाई है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, अंधा है और बहरा पैदा हुआ, वो बड़ा होने के बाद एक आदमी उसका कत्ल करता है, तो आप जाके बोलेंगे जज से, मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। आप तो कहेंगे कातिल को डबल सजा दो, वो मेरा भाई मासूम था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। कहेंगे क्या? आप थोड़ी कहेंगे कि मेरा भाई बहरा था, अंधा था, आप सजा कम दो, आधी दो। इस्लाम में अंधा है, 1 सेंस है या 5 सेंस है, कम सजा ज्यादा सजा नहीं। इस्लाम में जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो जो हुक्म हमें दिया हम उस पर अमल करते हैं। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाते, और हिंदुस्तान में अगर गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाते तो मैं खुश हूं। क्यों मालूम? अगर हर गैर मुसलमान गोश्त खाने लगे तो गोश्त का भाव हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कौन मुझे कहता है कि गोश्त खाना हराम है तो मैं कहता हूं भाई साहब हराम नहीं है, ये हमारे मजहब में भी इजाजत है, आपके मजहब में भी इजाजत है। नौवा अहम सवाल जो आम सवाल है इस्लाम के मुतालिक कि मुसलमान गोश्त खाते हैं, में एतराज नहीं, लेकिन जब मुसलमान जानवर को ज़बिया करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका जानवर मर गए, तड़पा तड़पा के क्यों मारते? बहुत कठोर मजहब है, बहुत बेरहम मजहब है। एक मुसलमान एक सिख से बहस कर रहा था इसी मौजू पे, और वो सिख कह रहा था तुम मुसलमान बेरहम है, तड़पा तड़पा के मारते जानवर को, हम एक झटके से मारते जानवर मर जाता है। तो मुसलमान ने कहा आप सिख जानवर को पीछे से हमला करते, आप बुज़दिल है, हम मर्द के बच्चे आगे से हमला करते। ये सही जवाब नहीं है, ये तो चुटकुला था, ये इस्लाम में इसीलिए नहीं हम आगे से हमला करते, ये चुटकुला था, वो अपनी हिकमत इस्तेमाल किया। सही जवाब ये है कि ज़बिया करते वक्त हमारे कोई शर्त है इस्लाम में कि ज़बिया करते वक्त गर्दन पे जब छुरी लगती है, छुरी तेज होना चाहिए, विंड पाइप को काटना चाहिए, वेसल्स ऑफ द नेक गर्दन के नस को काटना चाहिए, और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज होता है, झटका होता है, स्टनिंग होता है, तो वो नर्व जो दिल को जा रही है वो कट सकती है और दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, तो खून जिस्म में जम जाता है। हम जब ज़बिया करते हैं, गर्दन को काटते हैं, विंड पाइप को काटते हैं, गर्दन के वेसल को काटते हैं, और दिल धड़कता है चंद मिनटों तक। इस धड़कने के वजह से खून जानवर के जिस्म से बाहर निकल जाता है, और आज साइंस ये कहती है कि खून में जरासिम है, खून में बहुत बीमारी है। तो इस तरीके से जानवर का ज़बिया करना और साइंटिफिक है और अच्छा है, कम बीमारी हो सकती है। और साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया का गोश्त ज्यादा देर तक ताजा रहता है बनिस्बत गैर ज़बिया का।